afternoon, and welcome to Phase 2 press conference of the upcoming mission of the Global Precipitation Measurement. To discuss the mission, we have with us John Stockton, GPM Project Formulation Manager for NASA Headquarters. Mohan Bhargava, Project Manager and Spacecraft Mission Director from Goddard. Over to you, John. Thank you, George. The Office of Management and Budget released the President's 2004 fiscal year budget plan in early February, flagging off the GPM launch. We have in the formulation phase of GPM taken steps to reduce risks to ensure mission confirmation review. And that's where Mohan Bhargava, our project manager, comes in. Thank you, John. Good afternoon, everybody. Before I get into Phase 2, a quick update on the recently concluded Phase 1. In the Phase 1, we focused on the definition of mission scope, systematic measurement approach, and technology roadmaps. Will you roll the tape, please? Thank you. The core satellite is designed like a TRMM spacecraft, and it will be launched in a non-sun-sync orbit at an inclination of 65 degrees and an altitude of 400 kilometers. The constellation satellites would be pre-existing operational, experimental, and dedicated satellites with PMW radiometers. They would operate both in non-sun sync and sync orbits at an altitude of 600 to 900 kilometers. You're welcome to throw out any questions. What are the objectives of Yes, the there we global are. precipitation? With the help of the GPM, we'll be able to calculate the error associated with rainfall in near real time. Last question. Is this budget justified? Globally, there is a danger of water recession in the near future. It will not be unreal to imagine that in the 21st century, cities like Beijing, Amman, New Delhi, San Diego, Jakarta, Mexico City, Lima, and many others will use up their surrounding waters and perish. Water is going to be rare. Is it not reason enough to justify any budget? Are there any more questions? Thank you for being here. Yes, thank you. Thank you very much. मैंने आज तक जॉन स्टॉकटन को मुस्कुराते हुए नहीं देखा. He is really happy with us. प्रेस कॉन्फ्रेंस कमाल की थी और तेरा प्रेजेंटेशन excellent. This is really a quantum leap for us. Well, we can now let our hair down. Now that phase 1 is finally over. Hey, तू बड़ा चुप है? क्या बात है? Yeah, I want to get a cup of coffee. तू पिएगा? Yeah, maybe a strong one. Sure. 2 new messages. Hi, Mohan. This is Paul. Tried calling you at work on your cell. You seem to be in a meeting. Call me back. Good afternoon, Mr. Bhargava. This is Stephen Carter from the BCIS. Your request for citizenship has been accepted. Congratulations. Please call me in my office on Monday. Bye. Congratulations. अब तू अमेरिका का नागरिक बन सकता है. ए मोहन, कहाँ खो गया? कहीं नहीं. I get it. काम की जिम्मेदारी का दबाव, ऊपर से तेरे कोई शौक ही नहीं है. नो पबिंग, नो पार्टिंग. तो मेरी बात मान, तुझे शादी कर लेनी चाहिए. तुझे जरूरत है एक जीवन साथी की. और वैसे भी खुशियां दुगनी हो जाती हैं जब कोई साथ हो. मुझे ही देख ले. ये बात नहीं है विनोद.
फिर क्या बात है? What's the matter? आज मेरे माता पिता की बरसी है। Oh, I'm sorry. It's okay. मुझे आज तक यकीन नहीं होता। मैं यहाँ पेंसिल्वेनिया में अपने आखिरी साल की पढ़ाई कर रहा था जब मुझे उनके कार एक्सीडेंट की खबर मिली। अब समझ में आया कि तू सारा दिन इतना खोया खोया क्यों था। नहीं विनोद, इसके अलावा भी एक बात है जो पिछले कई महीनों से मुझे परेशान कर रही है। तुझे कावेरी अम्मा याद है? कावेरी अम्मा तेरे बचपन की दाई ना? प्लीज उन्हें दाई मत बोल। वो मेरे लिए मेरी मां समान है। I'm sorry. I had no idea. What about her? तुझे तो पता मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उन्होंने मेरी हर मांग को पूरा किया, मुझे बड़े प्यार से पाला पोसा। लेकिन उनके रहते हुए भी कावेरी अम्मा की मेरी जिंदगी में बहुत खास जगह थी। नाश्ता बनाए मां, अपने हाथों से खिलाए कावेरी अम्मा, रजाई उड़ाए मां, लोरी सुनाए कावेरी अम्मा। 2 साल की उम्र से लेकर 17 साल की उम्र तक उन्होंने मेरी पूरी देखभाल की। बस ये समझ लो कि कावेरी अम्मा ने भी मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। So, when was the last time you met her? अपने माता पिता के अंतिम संस्कार के वक्त मैं छोटे बच्चों की तरह रो रहा था कावेरी अम्मा की गोद में। It was a very tough time for me. फिर मैं यहां लौटा और अब जिंदगी संवारने में लग गया। कावेरी अम्मा अक्सर मुझे खत लिखा करती थी और मैं उन खतों का जवाब भी देता था। फिर बाद में मैं अपने काम में ऐसा उलझ गया कि I just lost touch. All this is so out of the blue, Mohan. I mean, आज अचानक उनका ख्याल क्यों आया? अचानक नहीं विनोद, पिछले कई महीनों से मैं कावेरी अम्मा के बारे में सोच रहा हूं। उनके बारे में बुरे ख्याल आते हैं कि वो पूरी बेबस लाचार हो गई होंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई विनोद। ये बात मैंने अब महसूस की कि मैं उन्हें भूल गया, उनका ख्याल नहीं रख पाया। मैं खुद कर्ज हो गया था विनोद। वही एक डोर है जो मेरे माता पिता की यादों को पिरोए। मैं सोच रहा था कि दिल्ली जाके उनको यहां पर ले। Absolutely, brilliant idea. लेकिन जॉन नहीं मानेगा। Don't be stupid यार। छुट्टी मांगने का इससे अच्छा मौका मिल ही नहीं सकता। हमारे पास 2.5 हफ्ते हैं जीपीएम प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए। जॉन का भी मना कर ही नहीं सकता। You think so? Yeah, sure. Promise to bring him back an elephant or something. Yeah, sure. They're planning to dump the main drive sometime after the next orbit. White Sands, confirm your keepers that's band downlink. I'll assert the box on my mark. Thank you very much. So, it's of the utmost importance to get the time pressure on the stabilization unit. Thank you very much, everyone. Excuse me, John. Sure, tell me. I have a request for 2 weeks off. Need to go to India. Is it possible? Is everything okay back home?
Oh yeah, everything's all right. Just a pending matter. When do you have to leave? Actually, as soon as possible. 28 weeks to launch. You realize you'll have to delegate some of this to others. Oh yes, yes. I'll have a detailed meeting with the team, and I'll be in constant touch with Vinod from there. All right then. Have a good trip. Thank you very much, John. कमाल है, जॉन बड़ी जल्दी मांग गया। मुझे भी छुट्टी मांग लेनी चाहिए थी। तू मांगता तो मेरी भी कैंसिल कर देता। चल। Yes, thank you. Can I get you anything else? No, I'm all right. Right. This is your captain here. Good morning, everybody. We have now started our descent, and कुछ ही समय में हमारा विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेगा। आशा करते हैं कि आपकी यात्रा सुखद रही होगी। एयर इंडिया से यात्रा करने के लिए शुक्रिया। Announcing the arrival of flight AI-112 from New York. Air India की उड़ान 882 That's न्यूयॉर्क right. से आज Good to see you. गुड टू सी यू टू। अरे यार फ्लाइट कैसे रही? Connecting flight देर से मिली, otherwise first class. How things with you? मेले कुछ लाया? हाँ, बहुत कुछ ला, सब कुछ तेरे लिए लाया हूँ। तो कावेरी अम्मा अब वृद्धाश्रम में रहती है? बात की तूने उनसे? नहीं, मैं उन्हें सरप्राइज करना चाहता हूँ। वो तुझे देखकर बहुत खुश होंगी। मुझे तो भूल चुकी होंगी। Obviously. Excuse me. कहिए, कोई सेवा? कावेरी अम्मा जी से मिलना चाहता था। कावेरी अम्मा? जी। हाँ, कावेरी अब वो आश्रम में नहीं रहती। नहीं रहती? जी, तकरीबन साल भर यहाँ रहने के बाद एक दिन एक लड़की उन्हें ढूंढने यहाँ आई थी और उन्हें ले गई। पर वो गई कहाँ? एक मिनट, मुझे रजिस्टर चेक करना होगा। जी। भारती जी, ये महाशय कावेरी जी को ढूंढ रहे हैं। कावेरी जी को। आपको पता है वो यहाँ से कहाँ गई? भारती जी और कावेरी जी एक ही कमरे में रहती थी।
जाने से पहले उसने किसी गांव का जिक्र किया था। क्या नाम था? हाँ, चरणपुर। हाँ, चरणपुर। ये चरणपुर कहाँ है? कभी सुना नहीं, पता करते हैं। कावेरी थी बहुत नेक। हम सभी उनकी कमी बहुत महसूस करते हैं। ये रहा पता। शुक्रिया। कावेरी बहुत नसीब वाली है। तो तब भी कोई लेने आया था, आज भी कोई लेने आया, वरना हम बुद्धू को कौन पूछता है। एक्सक्यूज मी, ये रहा नक्शा। इसमें तुझे चरणपुर मिल जाना चाहिए। 150 रुपए लगेंगे। नहीं नहीं यार, पैसे नहीं चाहिए। अरे यार, मेरा एक काम करेगा, 10 मिनट के काउंटर संभाल, मैं बैंक होकर आता हूँ। लुटने जा रहा है? नहीं यार, संभालेगा ना? अभी बैठ जाता हूँ यार। फिट है। फिट है, जल्दी आइए। Excuse me, you have no respect? क्या हुआ? आपको नजर आ रहा है मैं गिरी हुई किताबें उठा रही हूँ और आप फिर भी ऊपर से पैर रखकर चल रहे हैं। मैंने जानबूझकर तो नहीं किया। भाई साहब, किताबें ज्ञान देती है, संस्कार देती है। अगर आप इनकी इज्जत करना नहीं जानते तो फिर यहाँ आए क्यों? Well, I'm sorry. Thanks. सॉरी, मैं ये मैप देखा। आप ये बुक्स खरीदना चाहती? जी नहीं, बेचना चाहती। Stupid question. I'm sorry. नो, आई एम सॉरी। मैं जरा गुस्से में थी। नहीं, मैंने देखा वहाँ क्या हुआ। एक्चुअली आपने सही कहा, कुछ लोग अपनी अकल ही नहीं इस्तेमाल करते। Really stupid. Oh yeah, I'll do this for you. Lots of books. I will need a... वहाँ। Of course. Thank you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 books of mathematics, ages 17, 13 into 17 is equal to 2 to 1 plus 22 bhasha into 12. 485. 485. That's good. 8 है भूगोल into 19 is 152 and 485 is 637. Yeah, 637. Thanks. And these 8 notebooks into 113. The total is 750. ठीक ही होगा। 750. आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है। एक्चुअली मुझे आपको कंसेशन देना चाहिए। किताबें आपने चुनी, हिसाब भी आपने किया, आपको तो एक्चुअली मेरी कुर्सी पे होना चाहिए। तो दीजिए कंसेशन। नहीं दे सकता। मेरा नाम एक्चुअली मोहन भार्गव है। मैं राहुल का दोस्त। राहुल इस दुकान का मालिक है। वो भी यहीं पास में बैंक गया है। He needed some money, कुछ कड़की चल कुछ पैसा निकालने के लिए। I'm just filling in for him. अच्छा। Oh, I'll pack this for you. And that's okay. Bags. Yeah. मैं इस मैप में चरणपुर ढूंढ रहा था। छोटा सा गांव है। आपको मालूम है चरणपुर कहाँ है? हाँ, मुझे पता है।
नेशनल हाईवे नंबर 6 पर 110 किलोमीटर पर चरोटी गांव आएगा। वहां आप बाएं मुड़ जाइए और फिर 80 किलोमीटर पर आजमगढ़ आएगा। बस वहां से कच्चे रास्ते पर 20 किलोमीटर पर चरणपुर। आपकी तो ज्योग्राफी भी बहुत अच्छी है। चलो ठीक है। हेलो, आप जरा काउंटर देखिए। हेलो, ओए क्या हुआ, पहले दिन ही नौकरी से तंग आ गया? अरे नहीं यार, एक लड़की आई थी, बहुत सारी किताबें खरीदी, लेकिन अपने पैसे वापस लेना भूल गई। ओए क्या बात है, पहले दिन ही कंपनी का फायदा, तेरी नौकरी पक्की। बहुत कमाल की लड़की थी यार। मुझे चरणपुर का रास्ता भी बता गई। अच्छा, कहाँ है चरणपुर? यहाँ से कोई 200 किलोमीटर दूर है। राहुल, क्या दे, मुझे माफ कर दे, स्टोर छोड़कर मैं तेरे साथ नहीं चल सकता। अच्छा मत चलना यार, मुझे एक गाड़ी की जरूरत है। मेरी गाड़ी ले जा। अरे नहीं, आई मेंट यहाँ पे कैरावैन मिलेगा? कैरावैन? कैरावैन क्यों? गांव में रहने का कैसा इंतजाम होगा क्या पता। ओके ओके मिस्टर एनआरआई। अरे यार तू। अरे इंतजाम हो जाएगा कैरावैन का, फिक्र मत कर। खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी। चरणपुर के लिए इनमें से कौन सा रास्ता लूं? तुम रास्ता भटक गए हो। भटक गया? नहीं नहीं, मैं तो बताए हुए रास्ते पे ही जा रहा था। शायद कहीं कोई मोड़ गलत ले लिया हो। मोड़ गलत नहीं हो तो इंसान गलत हो। चरणपुर यहाँ से काफी दूर है, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता। क्या बात है? गाओ। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे।
होनी है, जिसका कब से अरमा था शायद वही बात होनी है। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया। आंसू की नदियां भी हैं, खुशियों की बगियां भी हैं, रास्ता सब तेरा तक है भैया। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। ना ना देखूं जिधर भी इन राहों में, रंग पिघलते हैं निगाहों में। ठंडी हवा है, ठंडी छाँव है, दूर वो जाने किसका गाँव है। बादल ये कैसा छाया, दिल ये कहाँ ले आया, सपना ये क्या दिखलाया है मुझको। हर सपना सच लगे, जो प्रेम अगन जले, जो राह तू चले अपने मन की। हर पल की सीप से मोती ही तू चुने, जो तू सदा सुने अपने मन की। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। मन अपने को कुछ ऐसे हल्का पाए, जैसे कंधों पे रखा बोझ हट जाए, जैसे भोला सा बचपन फिर से आए, जैसे बरसों में कोई गंगा नहाए। जैसे बरसों में कोई गंगा खुल सा गया है ये मन, खुल सा गया हर बंधन, जीवन अब लगता है पावन मुझको। जीवन में प्रीत है, होठों पे गीत है, बस ये ही जीत है, सुन ले राही। तू जिस दिशा भी जा, तू प्यार ही लुटा, तू दीप ही जला, सुन ले राही। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कौन ये मुझको पुकारे। नदियाँ पहाड़ झील और झरने, जंगल और वादी, इनमें है किसके इशारे। दुम दुम दाना रत दुम दाना, दुम दुम दाना रत दुम दाना, दुम दुम दाना रत दुम दाना भैया। सनी सा गा 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 मम मारे रे रे, सनी सा सा सनी सा सा, सनी सा गा गा सा मम मम सा, सनी सा सा सनी सा सा। यूं ही चला सनी सा सा सनी सा सा, कितनी हसीन ये दुनिया।
एक्सक्यूज मी, भाई साहब, ये कावेरी जी कहाँ रहती? भेज चुको, इन्हें कांवरी जी के पास ले जा। सॉरी। अरे कमाल है। इसे ना सुबह शाम इसी तरह से मालिश किया करो मेथिली, थोड़ी सी रोएगी बस, समझी? हाँ। अब बोल। तुमसे को मिलना है एक बहुत बड़ी गाड़ी में। बहुत बड़ी गाड़ी में? अरे हाँ चलो, वो गाड़ी बाहर खड़ी है। आ रही हूँ, अरे चिकू, ये तेरी कोई शरारत तो नहीं है? वो देखो। हाँ? कितनी बड़ी है ना? क्या हो रहा है ये? कौन है? बताइए, सोचिए। नहीं बता सकती। कौन हो तुम? चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अटकन भटकन दही चटोकन, तू यशोदा, मैं हूँ कावेरी अम्मा। मोहन, मेरा मोहन। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जानते हो ये कौन है? ये मेरा मोहन है, मोहन, जिसके बारे में मैं बताती रहती हूँ ना। चल तू यहीं रुक, अंदर कदम मत रखना, मैं अभी। हाँ, अब अंदर आ सकता है। कावेरी अम्मा। हाँ? अरे ये क्या कर रहा है? मुझे कितनी खुशी हो रही है तुझे देखकर, मैं बता नहीं पा रही हूँ। आने दो गीता को, बताऊंगी उसे कि अपनी शर्त जीत ली है मैंने। शर्त? मैं कुछ समझा नहीं। वो गीता है ना, हमेशा मुझसे कहती थी कि तू मुझे भूल गया है। अच्छा? पर मैं कहती थी कि नहीं, वो मुझे मिलने जरूर आएगा। इसी बात पर हम दोनों में शर्त लग गई कि अगर तू आया तो उसे मुझे आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। आइसक्रीम? कावेरी अम्मा। क्यों? क्योंकि अब भी तुम वैसे ही हो। आज भी तुम्हारी आइसक्रीम खाने की आदत गई नहीं। क्यों नहीं? आइसक्रीम क्या सिर्फ बच्चे खा सकते हैं? बूढ़ों के लिए मना है। बैठ। नहीं बाबा नहीं, बस। और वैसे भी
कौन कहता है कि तुम बुरी हो? अच्छा, ये गीता कौन है? ले, बचपन में तो उसी के साथ खेला करता था। वो हमारे दिल्ली वाले घर में कभी कभार आती थी अपनी माँ के साथ। ओह, कहीं तुम्हारा मतलब उस गितली से तो नहीं? हाँ, उसी नाम से तो उसे पुकारता था। और ये है नंदन, गीता का छोटा भाई। हम सब इसे प्यार से चिक्कू कहते हैं। चिकू? हे चिकू। पेट दर्द है ऐसा झूठ मूठ कह के आज स्कूल से छुट्टी ले ली है। तुम कितने साल के हो? 8। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं नवजीवन पाठशाला में पढ़ता हूँ। मेरा रोल नंबर 6 है और मैं 4ठी कक्षा में हूँ। हमारे स्कूल का सिद्धांत है कि किताबें ज्ञान का सागर होती है और ज्ञान ताकत। तुम्हारा स्कूल तो बहुत अच्छा मालूम पड़ता है, फिर गए क्यों नहीं? वो मेरे पेट में दर्द था। यहाँ था दर्द? इधर था। स्कूल देखने चलोगे? अभी नहीं, मुझे अम्मा से बातें करनी। नहीं, चलो ना, मेरा स्कूल देखने। ठीक है चिकू, तू एक काम क्यों नहीं करता मोहन? तू चिकू के साथ जाकर स्कूल देख ले, वहाँ गीता से भी मिल ले, वो वहाँ पढ़ाती है। लेकिन चीकू के पेट में तो दर्द था। वो दर्द था कि चला गया। चलो ना मेरा स्कूल देखने। वो पोस्टमैन चाचा है। अजी पोस्टमैन क्या, हल बैल खेत बीज फसल अनाज सब कुछ हूँ। चिट्ठी छाटू भी, बांटू भी और मोहर भी लगाऊं। बाइसिकल पर पोस्टमैन और कुर्सी पर पोस्ट मास्टर। नाम है मेरा निवारण दयाल श्रीवास्तव। बताइए आपकी क्या सेवा करूं? अमेरिका फोन लग जाता है यहाँ से? या एसडी नहीं, मिजवा गांव के जरिए लाइन लेनी पड़ती है। वैसे यहाँ नो बैंक, नो बॉन्ड, नो रजिस्ट्री। माफ कीजिएगा, आज आते वक्त थोड़ी तकलीफ हो गई आपको। कोई बात नहीं, आप विदेश में रहते हैं ना? जी। मुझे भी थोड़ी अंग्रेजी आती है। What can I do for you? Very good. मोहन भैया, ये देखो, ये मेरा स्कूल है। बहुत अच्छा चीज। उन्नीस 12 छोड़ो का नारा पहली बार मुंबई में सुनाई दिया। मुंबई से लाहौर गोलबाग तक, गोलबाग से लेकर किस्सा खानी पेशावर तक आजादी के दीवाने अंग्रेजों की फौजों के साथ भिड़ गए और सटासट लाठियां चली, तड़ातड़ गोलियां बरसी, लेकिन हम सब झेलते रहे। किसी एक ने भी हाथ नहीं उठाया। मेरे कंधे पे भी गोली लगी। फरंगियों ने तंग आकर हमें जेल में डाल दिया। हम वहां भी नारे लगाते रहे, इनकलाब जिंदाबाद। तब आपकी दाढ़ी थी? अगर मेरी दाढ़ी होती तो मुझे कंधे पे गोली थोड़ी लगती, बालों में घुस के तो गुम हो जाती। मैं चलता हूँ। हम दोनों चलते हैं। हम सब चलते हैं। चार्ज। कमला, अब तुम कहो। मैं चलता हूँ। अरे आप, मैं आपके बताए हुए रास्ते को शायद ठीक तरह समझ नहीं पाया और खो गया। माफ कीजिए, ये स्कूल है और मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। I'm sorry. मोहन भैया, ये गीता दीदी है और दीदी ये मोहन भैया है। अमेरिका से आए हैं। अमेरिका से नहीं चीकू, अमेरिका से। चिकू, तू घर के बाहर क्या कर रहा है? तेरे पेट में दर्द था ना? अम्मा ने कहा कि मोहन भैया को स्कूल दिखाओ, इसलिए। तुम गीता हो, पहचाना मुझे? बचपन में तुम्हें गितली कहकर पुकारता था। बच्चे पढ़ रहे हैं, आप जाएंगे? I'm sorry. अब आई बात समझ में। मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी,
अरे हाँ, याद आया, तुम ये 50 रुपए भूल गई थी। थैंक यू। अब आप जाएंगे? हाँ, I'm very sorry. मैं चलता हूँ। वेरी गुड। क्या है ये? फुट मसाजर, तुम्हारे पैर का दर्द दूर कर देगा। अभी बिजली नहीं है। क्यों? यहाँ तो ऐसे ही आती जाती रहती है। अच्छा, तो अब कब आएगी? कुछ कह नहीं सकती, हफ्ते में 3-4 बार तो यही होता है। ये कौन है? गीता के माँ बाप शांता और जगमोहन जी, जिन्होंने यहाँ चरणपुर में पाठशाला शुरू की। चिक्कू जब 5 साल का था तब जगमोहन जी चल बसे। उस वक्त गीता दिल्ली में कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी हुई वो यहाँ आ गई और पाठशाला चलाने में शांता की मदद करने लगी। लेकिन शांता की तबीयत बिगड़ती चली गई। मरने से पहले उसने गीता को भेजकर वृद्धाश्रम से मुझे बुलवा लिया और दोनों बच्चों की जिम्मेदारियां मुझ पर सौंप गई। I'm sorry. आज देर हो गई। हाँ, पेपर्स करेक्ट करने थे, सोचा वहीं पे कर लो। पता है मैं तेरे लिए क्या बनाने वाली हूँ मोहन? अरे वाह, तेरी मनपसंद तड़का दाल, आलू की सब्जी और खीर। वाह। गीता, अब तुझे आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। तू शर्त हार गई। वाह कावेरी अम्मा, तुम्हारे हाथ से बने खाने के लिए तरस गया था। खीर तो बहुत ही अच्छी थी। मैं जानती थी तुझे अच्छी लगेगी। मेरी छोड़, अब तू बता तेरे और अमेरिका के बारे में। अमेरिका में सब ठीक है। हैव ऑल द कंफर्ट्स, सारी सुख सुविधाएं हैं। मैं बहुत खुश हूँ ये सुनकर। और तेरा नशा कैसा चल रहा है? नशा? हाँ, क्यों छोड़ दिया? नशा? नासा 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 वही है। मेरा नशा ठीक, मेरा नासा का काम अच्छा चल रहा है। तुम एस्ट्रोनॉट हो? नहीं, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूं फॉर ग्लोबल प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट, GPM। ग्लोबल प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट, वेरी गुड। ये देखिए। वाह, वेरी गुड। तुम तो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हो। चिक्कू, तुम आज स्कूल नहीं गए हो, तुम्हारी पढ़ाई भी रह गई है। चलो। गुड नाइट चिकू। गुड नाइट बोलो। गुड नाइट। कावेरी अम्मा, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। माफी? किस बात की? आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। अरे क्या बोलने लगा है तू? कहने दो कावेरी अम्मा। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत थी मैं तुम्हारे पास नहीं था। आई एम सॉरी कि तुम्हें एक वृद्धाश्रम में जाकर रहना। एक और लफ्ज नहीं बेटा, ये सब नसीब की बातें होती है। मेरे पास वहां सब कुछ, बस तुम नहीं। आई मिस यू वेरी मच कावेरी अम्मा।
मेरे साथ चलोगी? कहाँ? अमेरिका। अमेरिका? नहीं, मैं यही ठीक हूँ। मेरे साथ चलो तो सही, वहां पर बहुत आराम है। बड़े से बड़ा काम यूं चुटके में हो जाता है। इट्स अ मच बेटर लाइफ देन। मैं सोचती हूँ इसके बारे में। अब चल उठ, चल, चल, चल। तू यहाँ सो जा। यहाँ? अगर एतराज ना हो तो मैं अपने कैरावान में सो जाऊं। अब ये कौन सी मशीन है नींद लाने की? कुछ ऐसा ही समझ लो। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। कहिए, कहिए। सर मिला राम। हेलो, क्या चाहिए? सर मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ, प्लीज टेस्ट कीजिएगा सर। नाश्ता अभी नहीं, अभी वो। सर प्लीज, मैंने सिर्फ आप ही के लिए स्पेशली बनाया हूँ। आई एम वेरी गुड रसोइया, मतलब कुक। गॉट इट, मतलब समझ गया। अब बहुत अच्छे कुक है, मतलब रसोइया। थैंक यू सर। वेरी नाइस। आप अमेरिका से आए हैं सर? एक क्वेश्चन है सर, क्या अमेरिका में बहुत सारे हाईवे हैं सर? है, लेकिन वहां पे उन्हें फ्रीवेज कहते हैं। गॉट इट, मतलब समझ गया। और एक क्वेश्चन है सर, बैठिए। क्या उस फ्रीवेज पर ढाबा है सर? ढाबा? हाँ हाँ है, क्यों? आप क्या थिंक करते हैं, अगर उस फ्रीवेज पर इंडियन ढाबा खोल दें तो चलेगा? आई थिंक चलेगा। चलेगा? आई थिंक शायद। थैंक्स फॉर द ढाबा, नाश्ता। आपकी अगर इजाजत हो तब मैं तैयार हो जाऊं प्लीज। क्यों नहीं सर, आई विल मीट अगेन सर। थैंक यू टेलराम। सर मेला राम, सॉरी मेला राम। सर लास्ट क्वेश्चन सर, आई विल गिव यू वेरी गुड ऑफर सर। हम पार्टनरशिप में ढाबा खोलते हैं, आई विल गिव यू 50%। हाँ, अपनी कमाई का आधा हिस्सा आई विल गिव यू। मैंने ढाबे का नाम भी सोचा है सर, इट विल बी कॉल्ड मेला राम ढाबा। ओके ओके, हैप्पी, वेरी हैप्पी। इट्स अ डील सर। डील। जय राम जी की। जय राम जी की।
ये है तुम्हारा कारवान? मेरा नहीं है, राहुल के किसी दोस्त का है। हाँ, अच्छा है। नहीं गीता? चीकू सही कह रहा था, वाकई ये गाड़ी एकदम घर जैसी है। चलते फिरते घर जैसी है। बिल्कुल, बहुत कंफर्टेबल है। अब हमें चलना चाहिए, पंचायत शुरू हो जाएगी। अरे चलो नीचे आओ, चलो चलो जल्दी करो। ये क्या जल्दी पिछली पंचायत की सारी मांगों पर जिला परिषद में विचार चल रहा है, बहुत जल्द ही फैसला लिया जाएगा। सदानंद जी, ये बताएं कि बाकी की बिजली की तार अब कब लगा रहे हैं? हम जल्द से जल्द काम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राम पंचायत ने पिछले महीने। ठहरिए सदानंद वाजपेयी साहब, मैंने कभी पंचायत नहीं देखी। आपसे जब पूछो तो आप यही एक रिकॉर्ड बजाते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। आप बीडीओ हैं, आप जानते हैं कि बिजली की समस्या कब से हमारे गांव में डेरा डाले बैठी है। 75% गांव में तो बिजली की कटौती होती रहती है और 1/4 चरणपुर आज भी अंधेरे में है। ये तो वो बात हुई कि एक पाँव में मखमल का पजामा, दूसरा पाँव नंगा। ये बिजली की तारों का क्या फायदा? दादाजी, सरकार के सर्वेक्षण अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट बना ली है, बस कुछ ही दिनों की बात है। कुछ ही दिनों की? तुम्हारे इन कुछ ही दिनों में हम राम जी के चरणों में होंगे। हमारी समाधि पे बिजली का बल्ब लटका देना। दादाजी ऐसा मत कहिए, आपको लंबी उम्र लगे। बुरा मत मानिए दादाजी, मुझे भी गांव के खिलाफ एक शिकायत है। क्या है? मैंने सुना है दुखी संतराम और उनके लड़के बिजली के खंभे पर तार डाल के बिजली की चोरी करते हैं। हम नहीं करते, ये संतराम करता है। जुबान हमने कब चोरी करी? अब समझ में आया कल घर में बिजली क्यों नहीं थी। हमारा बाप दादाओं की भी मेहनत लगी हुई है। हाँ, पर खुदवाया तो हमारे बाप दादा नहीं। ठीक है सदानंद जी, 1 महीने के भीतर ये काम हो जाना चाहिए जी, वरना हमें ऊपर शिकायत करनी पड़ेगी। संगम, आगे का क्या मामला है? मामला नंबर 35 स्कूल। कहिए गीता जी। सरपंच जी, मैं बच्चों को इसी स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ। जिस नई जगह की आप बात कर रहे हैं, एक तो वो बहुत छोटी है और दूसरी बात वो बहुत दूर भी है। बच्चे इतना चलकर नहीं आ पाएंगे। आपको इतनी बड़ी जगह की जरूरत ही क्या है? कक्षाएं भरने के लिए और बच्चे कहाँ से लाएंगे आप? स्कूल में और बच्चे पढ़ने आएंगे। ये तो आप 1 बरस से कह रही हैं। वो कोशिश कर रही है, हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए दादाजी, स्कूल की जगह पंचायत के लिए चाहिए। तहसीलदार भी जगह मांग रहे हैं और फिर धान भरने के लिए एक कमरा भी तो चाहिए। हाँ, वो गांव के आर्थिक विकास का केंद्र बनेगा। उसके बदले जो जगह हम आपको दे रहे हैं वो आपकी जरूरत के हिसाब से काफी है बेटी। काफी नहीं होगा, मुझे स्कूल में और कक्षाएं शुरू करनी है। जिन बच्चों ने कुछ साल पहले बीच में स्कूल छोड़ दिया था, मैं उन्हें वापस स्कूल में लाना चाहती हूँ। अभी भी बहुत सारे गांव वाले अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। मैं आज उनसे विनती करती हूँ कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। ठीक है गीता जी, अगर आप 3 महीने में और बच्चे ला सकती है तो हमें कोई इतराज नहीं। मगर उसके बाद भी बच्चे नहीं आए तो हमारी आपसे यही विनती होगी कि आप इसको दूसरी जगह ले जाएं। अब ई महीने की पंचायत सभा खत्म। चल मोहन, तुझे पंचों से मिलवाती हूँ। नमस्ते। ये मेरा मोहन है, अमेरिका से आया है। अच्छा। मोहन, एक गांव के सरपंच है, विष्णुदत्त जी। हेलो। नमस्ते। खुश हो बेटा। मुनीश्वर जी।
जीते रहो जीते रहो जीते रहो जीते रहो। गंगा देवी जी नमस्ते। फातिमा भी खुश रहो बेटा। नारायण जी जीते रहो बेटे, राम तुम्हारी रक्षा करे। अमेरिका में करते का हो बेटा? जी मैं नासा नाम की कंपनी में काम करता हूँ। कहाँ बनाती है कंपनी? हम सैटेलाइट बनाते हैं। वो कहाँ होता है? अरे फातिमा आपा, अरे वही जो आसमान में चमकता है वो सैटेलाइट्स मैं बताओ, सैटेलाइट चांद की तरह धरती के चक्कर लगाते हैं और कहाँ बरसात होएगी, कितनी होएगी, वातावरण कैसा रहेगा, उसकी खबर हमें भेजते रहते हैं। वही यही बताया था ना तुमने? वाह रे कावेरी वाह, वल्लाह जवाब नहीं है तुम्हारा, गुटुर गुटुर इतना सब बोल गई। ये लो बेटा, जो काम तुमने बताया तुम करते हो वो काम तो अपना सहदेव भी करत है, बिना घूमे हुए। हाँ ए सहदेव, बता जरा। आसमान साफ है, 2 दिन तक बादल नजर नहीं आएंगे। वेरी गुड, मैं भी यही काम करता। मोहन भैया वो देखो मंदिर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये क्या है? यही खासियत है इस गांव की। ये भगवान श्री राम और सीता मैया के बच्चन है। क्या? राम और सीता के बच्चे? चरणपुर। ओके ओके। अब पता चला इस गांव का नाम चरणपुर कैसे पड़ा। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। और कावेरी अम्मा वो कैसी हैं? बहुत अच्छी हैं। यार आई बीन ट्राइंग योर सेल फोन। हाँ, यहाँ सेल फोन का नेटवर्क नहीं है। विनोद, अब मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं चरणपुर नाम के एक छोटे से गांव में हूँ। Oh, anyway, now what about the GPM instrument concept and risk reduction study that needs to be initialized? मैं तुझे ग्राफिक्स ईमेल कर देता हूँ। हाँ कर दे, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन भी वीक है। आई डोंट थिंक डाउनलोड होगा। तो ऐसा कर, तू राहुल को एक सीडी दिल्ली में फेडेक्स कर दे, वो भेज देगा। ओके, जल्दी आओ। एक बात और, हफ्ता तो यूं ही निकल जाएगा। ऑलराइट। लग रहा है कुछ दिन और यहाँ पर रहना पड़ेगा। कावेरी अम्मा का कुछ काम है जिसे पूरा किए बगैर वो मेरे साथ नहीं आ पाएंगे। ओके ठीक है। जॉन से इस बारे में बात करूं? इसी तरह। डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। ओके, सी यू देन। बाय। जयराम जी की। अरे वाह, गांव की आवाज आ रही है तुझ पे। जयराम जी की। बाय बाय। एक मिनट। हाँ कितने हुए? 518 रुपए। 518 रुपए सर। थैंक यू। ये थैंक यू। एक सेकेंड सर, अभी आपने कुछ इंटरनेट कहा था। इंटरनेशनल सुना है, पर इंटरनेट का है, पहले भी कभी नाम सुना है? इंटरनेट इंटरनेट के जरिए हम कोई भी संदेश दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं, बिना पोस्ट ऑफिस के। इसे ईमेल कहते हैं। ईमेल? अच्छा, क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो कमाल हो गया। ई गांव में ईमेल लग जाए तो हमरे पैर का सनीचर उतर जाए। कैसे? घर घर में जाए कि चिट्ठी पहुंचाए तो छुट्टी। ये सारी चिट्ठियां घर घर में ईमेल से ईमेल कर दूंगा। ईमेल
गुरु ज्ञान करावत, ईमेल संसार जनावत, छूटे देश परदेश रे भैया, छूटे देश परदेश। थैंक यू सर। ओके, मोहन, ए मोहन, वारे कुंभकर्ण के नींद। कावेरी अम्मा क्यों जगा रही हो? बहुत दिनों से इतनी गहरी नींद नहीं सोया। चल उठ जा, बहुत काम है। मेहमान 11 बजे आ रहे हैं, घर की साफ सफाई करनी है। क्या हो रहा है? कौन आ रहा है? देख बेटा, गीता को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। क्या? आजमगढ़ के रहने वाले हैं। गीता की शादी? हाँ। हाँ, गीता की शादी? तुझे रात को बताना ही भूल गई। 2 महीने पहले मेरी चिट्ठी पत्री हुई थी विश्वास जी के साथ। देखने का मुहूर्त आज बना। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? मतलब इतनी क्या जल्दी? अभी तो बच्चे ही है। हाँ। अजीब बात कर रहा है तू। चल चल जल्दी तैयार हो जा। तुम क्यों जल्दी तैयार हो जा? मुझे देखने आ रहे हैं क्या? ये गीता है। नमस्ते। ये रघुनाथ। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। मैं अभी आई। सुना है आप यहाँ स्कूल चलाती है? जी। हमारा तो केमिकल्स का बिजनेस है। अच्छा। आपकी ये शर्त मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। स्कूल में पढ़ाना मुझे पसंद है, वो मेरी इच्छा है, लगन भी। और ये काम मैं शादी के बाद भी करना चाहूंगी। गीता, एक स्त्री के लिए घर का कामकाज ही काफी है। मैं नहीं मानती। घर की देखभाल के साथ साथ मैं काम भी करना चाहती हूँ। लेकिन हमारे घर में स्त्रियों को बाहर काम करने की इजाजत नहीं है। और वैसे भी शादी के बाद आपको काम करने की जरूरत ही क्या है? और अगर यही बात मैं आपके बेटे से कहूं तो? हमारे माँ बाप हमें उतने ही लाड प्यार से पढ़ाते लिखाते हैं और वो यही चाहते हैं कि हम स्वाभिमान, आजादी और आत्मनिर्भरता से जिए। अगर आपके बेटे में जीवन में कुछ कर दिखाने की और समाज में अपनी जगह बनाने की इच्छा है, तो क्या लड़कियों को ये इच्छा नहीं हो सकती? Be it in any field, women are making their mark equally. हथेलियां सिर्फ मेहंदी के लिए नहीं होती। और शादी के बाद क्या घर और बच्चे आदमी के उतने ही नहीं जितने औरत के? तो फिर दोनों मिलकर एक दूसरे के सहायक क्यों नहीं बन सकते? दोनों में से एक ज्यादा बलिदान क्यों दे? शादी के बाद घर में बंधे रहने की यह शर्त मुझे मंजूर नहीं है। मतलब आप ये रिश्ता ठुकरा रही हैं? मुझे और कुछ नहीं कहना। बहन जी, आजकल के बच्चे ऐसे ही सोचते हैं।
ये बात शायद हमें यहीं छोड़ देनी चाहिए। क्षमा चाहती हूँ शारदा जी, विश्वास जी। कोई बात नहीं। जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ बेटे, लेकिन मुझे सही लगा। तुझे उनसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। जो भी हो, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। कावेरी अम्मा, गीता सही कह रही। बेटा वो अच्छा लड़का था। समय के साथ साथ इंसान के सोचने का तरीका बदला भी तो जा सकता है। हाँ, ये भी ठीक है। नहीं, मैं उसे नहीं बदल पाती। आदतें बदली जा सकती है, लेकिन मान्यताएं, दकियानुसी विचार और जिद नहीं। मुझे पूरा यकीन है उनकी अगली मांग दहेज की रकम। Quite possible. I completely agree with you. इसी तरह के विचार, ये रीति रिवाज, परंपरा, ये सब देश को जकड़े हुए हैं और आगे नहीं बढ़ने दे रहे। एक्सक्यूज मी, परंपरा और संस्कार के बिना हमारा देश यूं होता जैसे आत्मा बिना शरीर। पर मोहन, हम देश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कावेरी अम्मा, लेकिन ये सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। किस आत्मा की बात कर रही होगी? We are plagued with problems. I mean, तुमसे बेहतर कौन जानता है? Illiteracy is rampant. अशिक्षा, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, and we are yet underdeveloped. हाँ, अशिक्षा और गरीबी का तो चोली दामन का साथ है। कावेरी अम्मा, आपके गांव में अभी तक पूरी तरह बिजली नहीं आई है। ये जात पात, बढ़ती आबादी, अनएम्प्लॉयमेंट, भ्रष्टाचार, हमारी हालत बहुत खराब है। इट्स पैथेटिक। जो नमक दे। तुम मुद्दे से हट रहे हो, पर तुमने छेड़ा है तो मैं तुम्हें बता दूं कि सरकार इन समस्याओं का हल निकालने की कोशिश कर रही है। हाँ, देखते हैं क्या हल निकालती है सरकार। The infrastructure that the government has is not enough to cope with even 1/4 of the existing population. एक चौथाई पॉपुलेशन की समस्याएं पूरी नहीं कर सकती है गवर्नमेंट। सरकार कोशिश कर रही है, योजनाएं भी बना रही है। हाँ, कोशिश कर रही। योजना, सिर्फ योजनाएं बनाना या उनके लिए फंड इकट्ठा करना, यही सरकार की जिम्मेदारी है। ग्रास रूट पे ये योजनाएं ठीक तरह से इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं, आम आदमी तक वो सुविधाएं पहुंच रही हैं या नहीं, क्या ये सब देखना सरकार का काम नहीं? हाँ है, लेकिन सरकार को तुम समझते क्या हो? सरकार एक सिस्टम है जिसका जनता भी एक हिस्सा है। हम, तुम, ये गांव, यहाँ के सारे लोग इस सिस्टम का हिस्सा है। अब अगर इस सिस्टम में कोई कमी हो तो उसे ठीक करना हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी सरकार की। जो अपनी मदद करना नहीं जानता, उसकी मदद तो भगवान भी नहीं कर सकता। कावेरी अम्मा, लेकिन यहाँ पर कुछ बदलने वाला नहीं है। लोग बदलना ही नहीं चाहते। कितना आसान है गलतियां निकालना। तुम इन सब के लिए कुछ कर रहे हो? नहीं ना? एक्सक्यूज मी, एटलीस्ट तुम्हारी तरह सरकार का बचाव तो नहीं कर रहा हूँ। आई एम बिल्डिंग सैटेलाइट्स। मैं अपनी तरफ से सैटेलाइट्स बना रहा हूँ जो तकनीकी विकास के लिए मददगार साबित होंगे फॉर एवरीवन, मैनकाइंड। थोड़ी और दाल होगी? नहीं, लेकिन ये सब तुम वहां कर रहे हो, कम से कम मैं यहाँ ग्रास रूट लेवल पर काम कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक दिस अ बेटर प्लेस। गीता, तुम भी टिपिकल इंडियन हो। तुम हिंदुस्तानी कभी अपनी गलतियां नहीं मानते। तुम हिंदुस्तानी? सॉरी, आई मीन हम हिंदुस्तानी। खैर, हम जानते हैं कि कुछ नहीं बदल रहा है, मगर फिर भी मैं कोशिश तो कर रही हूँ। तुमने तो उम्मीद ही छोड़ दी है। बिल्कुल नहीं। Yes, you have. No, I haven't. लड़ाकू है। तू भी कुछ कम नहीं है। इस लड़की का क्या करूं? कितना अच्छा लड़का था। और भी बहुत लड़के हैं। हाँ है, लेकिन गीता की बहुत सारी उम्मीदें हैं। उसकी पसंद का लड़का मिलना बहुत मुश्किल है, ऊपर से स्कूल का केस। जब तक ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तो मेरे साथ नहीं चल सकती। एक काम करते हैं, दोनों काम बांट लेते हैं। मैं लड़का हूं,
मेरा मतलब तुम लड़का ढूंढो और मैं बच्चे ढूंढता हूं। गीता की प्रॉब्लम्स ही खत्म कर देते। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। जय बजरंगबली। ये कुश्ती का पहला दांव, लंगड़ी याद रखो। अरे आपकी कोई चिट्ठी नहीं है मोहन बाबू। आप पहलवान भी हैं? पहलवानी तो हम बचपन से करते आ रहे हैं और कुश्ती लड़ना अपना शौक है। वेरी गुड। वैसे आप कितना पढ़े हैं? मेरा मतलब इस पोस्ट के लिए तो काफी मेहनत की होगी आपने। ग्रेजुएट हैं। बड़े नसीब वाले। नसीब वाले तो हैं और जमकर पढ़ाई भी की। पढ़ाई तो जरूर की होगी। नसीब वाला तो इसलिए कह रहा हूँ कि कम से कम आपको हाई स्कूल जाने का मौका तो मिला। मुझे तो गांव के बच्चों के ऊपर तरस आता है। वो कहा है? बताता। इस स्कूल के केस के बारे में आपकी क्या राय है? स्कूल का केस सीधी सी बात है। स्कूल को यहाँ से हट जाना चाहिए। ये पंचायत की जगह है। इसलिए तो मुझे गांव के बच्चों पर तरस आता है। आप ही सोचिए, पंचायत तो यहाँ पर हाई स्कूल शुरू होने नहीं देगी। अब बच्चों की जिंदगी पर सिर्फ चौथी पास होने का क्या फर्क पड़ेगा? अगर बच्चों को आपकी तरह बड़ा बनना है तो उन्हें हाई स्कूल में तो जाना ही पड़ेगा। सो तो है। देखिए, यहाँ पर हाई स्कूल है। बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, लिखना सीखेंगे और तो और अपने माँ बाप के लिए खत भी वही लिखे। जरा सोचिए, आपका कितना सारा बोझ कम हो जाएगा। स्कूल तो यहीं पर होना चाहिए। हम गांव में बात चलाएंगे। जरूर कीजिएगा। पक्का। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। मोहन बाबू जी। आइए हमारे अखाड़े में भी कभी। हाँ हाँ, जरूर आऊंगा। कुश्ती वुश्ती हो जाए। जरूर। मोहन बाबू, आपके लिए सरप्राइज है। ये रहे पकौड़े शिमला मिर्च तंदूरी के संग। खाइए सर, आज मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया हूं। बस इतनी डिश है? नहीं सर, आप जो डिश बोलिए फटाफट बन जाएगी। समझ गया। सॉरी मेला राम। कुछ मत कहिए सर, मैं जानता हूं आप क्या पूछने वाले। क्या? मैं खुद सोच रहा था। यू फील बैड, आई विल गिव यू 60%। हाँ, मैं आपको पार्टनरशिप में 60% दूंगा। ओके। आपका खाना पीना भी फ्री। थैंक यू। मैंने नाम भी चेंज कर दिया है। वी कैन कॉल इट मोहन का मेला राम ढाबा या फिर मेला राम का मोहन ढाबा। आप देख लीजिए, अभी फाइनल नहीं कर रहे हैं। पहला वाला ठीक है, मोहन का मेला राम ढाबा। ठीक है सर, तो डील डन सर। लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद सर? मैं तुम्हारे बिरादरी के बच्चों को स्कूल में भिजवाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत। समझा। ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है। तो तुम्हारा अमेरिका जाना भी डिफिकल्ट काम है। इजी है सर, आई एम रेडी। बोले मुझे क्या करना है सर? हमार बच्चा और उनके बच्चन के साथ? शेर और बकरी एक घाट पर पानी नहीं पी सकत है मोहन बाबू। वैसे कौन ठाकुर हो तुम? जी। मैंने जात का है तुम्हारी? जी मैं ब्राह्मण। तो वही तरह आचरण करना भी सीखो। तो मुझे क्या करना होगा? तुम मेला राम के हाथ का खाना खाते हो कि जात का है ये पता है तुम्हें? तो इससे क्या फर्क पड़ता है? कौन सी सदी में जी रहे हैं आप? हमार धर्म भ्रष्ट करने पर काहे तुले हो? खुद तो भ्रष्ट हो ही हमें भी भ्रष्ट करना चाहते हो। और निवारण जी, लागत है आपका निर्माण तो ये पहले ही कर चुके हैं। काहे? जो सही लग रहा है वो हम कर रहे हैं। आपको एतराज है तो आप मत मानिए।
अरे ओ बिरसा, ये मोहन बाबू हैं, तुम्हारे संग बात करे चाहते हैं। क्या हुआ हुजूर? हमसे कोनो गलती हो गई का? नहीं, हम आपसे सिर्फ ये पूछने आए थे कि क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहेंगे? हुजूर जी, गांव में हम पेट भरन के वास्ते काम नहीं कर सकत है। वो गांव हमारे बच्चों को का पढ़ाई? आप उसकी चिंता मत कीजिए, स्कूल में आपके बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन हुजूर, अभी शादी ब्याह की उम्र में पढ़ाई करके का करी? और वो हमारी लजवा का अब गौना भी आवे वाला है। चाइल्ड मैरिज। हम लोगों की हालत देख रहे हो आप, जैसे तैसे पेट भरी जाते, पढ़ाई खर्चा कहाँ से देबे? गीता जी सिर्फ पैसों के लिए स्कूल नहीं चलाती, बच्चों को पढ़ाना उनकी लगन है और इच्छा भी। देखिए, अगर हम उनसे बात करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत सहूलियत भी दे देंगे। अरे गांव वाले हम लोगों को नहीं चाहते। देखिए आप। जय दो सरकार, इन बच्चों के नसीब में पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई नहीं है साहब। आपने क्या सोचा बिश्नोई जी? पढ़ाई से पेट नहीं भरता बाबू। और फिर आगे चल के जब यही काम करना है तो काहे बखत खोटी करें? तुमने बनाए, बहुत खूबसूरत है। एक बार बताइए, इस मटके को कितने में बेचते हैं आप? 30 रुपया में। क्या? शहर को कॉन्ट्रैक्टर खरीदता है और कभी कभी 5-10 रुपया ज्यादा भी मिल जाता है। 30 रुपए से कम नहीं होगा बाबूजी। शहर में इसकी कीमत 100 रुपए से कम नहीं होगी। अगर तुम लोग पढ़े लिखे होते तो इस तरह घाटे में नहीं जाते। जी, मैं मानता हूँ आपकी कारीगरी बहुत उम्दा है, पुश्तों से चली आ रही है और बच्चों को ये कारीगरी सीखनी ही चाहिए। लेकिन आज के जमाने में पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्यों नहीं जी? बिल्कुल, बहुत। क्योंकि पढ़ लिख कर आपके बच्चे इस कला को उसका सही अंजाम दे पाएंगे, उसकी सही कीमत पा सकेंगे। सपने मत दिखाई हमें, और सपने मत दिखाई। अरे नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते देवानंद जी, आइए मोहन जी। मोहन बाबू आपसे स्कूल के बारे में सब मालूम है, सब मालूम है। भाई, हमारे दोनों पोते स्कूल जाते हैं और शिक्षा के मामले में हम बिल्कुल सजग हैं। लेकिन मैंने सुना है आपकी 2 पोतियां भी हैं और दोनों ने ही स्कूल छोड़ दिया है। अच्छा, कुसुम सुमन दोनों 4th पास है, फिर आगे पढ़ लिख कर क्या करी है? घर का कामकाज सीख रही हैं, खाना बनाना सीख रही हैं, ब्याह के बाद यही सब तो कुछ करना है उन्हें। कैसी बातें कर रहे हैं आप? शिक्षा तो लड़कियों में आत्मविश्वास जगाती। क्या आप नहीं चाहते आपकी पोतियां पढ़ लिख कर स्वाभिमान, आजादी और आत्मनिर्भरता से जिए? हथेलियां सिर्फ मेहंदी के लिए नहीं होती। अरे ये सब तो ठीक है मोहन जी, लेकिन गांव में हाई स्कूल भी तो नहीं है, पढ़ती तो कहां पढ़ती? मिसवा गांव में तो है, वहां भेज देते। लेकिन अब उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि गीता जी यहां पर हाई स्कूल शुरू करने वाली हैं। आपकी इजाजत हो तो। सहयोग दीजिएगा। सीना हुई मोहन बाबू। लेकिन आप कब तक बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर जात पात को थोपते रहेंगे? अरे हमें क्या करना है चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बताने वाले तुम कौन होते हो भाई? इस गांव के बारे में, गांव की समस्या के बारे में कितना जानते हो तुम? माना कि तुम इसी देश की पैदाइश हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम सबका संदेश देते घूमो। अपने गांव घर के मामले में हमें क्या फैसला लेना है हम अच्छी तरह से जानते हैं। जी हाँ, पर इस सब में नुकसान तो बच्चों का ही हो रहा है ना। बहस मत करो भाई, बहस मत करो पिताजी, और मेहरबानी करके गांव के मामले में अपनी टांग अड़ाना बंद करो, समझे? अरे मोहन बाबू, 2 दिन के लिए आए हो, घूमो फिरो, गांव देखो, काहे चक्कर में पड़ो? सुनिए, चरणपुर में
सिनेमा देखने। अरे आज शाम को पंचायत की तरफ से सिनेमा दिखाने का प्रोग्राम है, आओ देखो, मौज बनाओ, बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ भैया, कितना हुआ है? ओके सर, मिलते हैं। क्यों, कहाँ जा रहे हो? पिक्चर नहीं देखोगे? नहीं सर, मैं यहीं बैठकर देखूंगा, आप देखिए। अच्छा। हेलो। वैसे कौन सी फिल्म दिखा रहे हैं? यादों की बारात। किसकी बारात? यादों की बारात। मैंने सुना तुम्हारी बारात। Shut up. मजाक कर रहा हूँ। सब लांटेन एक्चुअली बुझा दे। मेरी फेवरेट फिल्म्स में से। सिनेमा शुरू होने जा रहा है। साहिबान, मेहरबान और कदरदान, आज का जरूरी ऐलान, सिनेमा के दौरान बच्चों के चिल्लों पे माताएं रखेंगे ध्यान और कोई नहीं करेगा बगल वालों को परेशान। पेश है 3 भाइयों की मिलने और बिछड़ने की सौगात। आज का सिनेमा है यादों की बारात। आज तुम वही गाना गाओगे जो हर साल इसी दिन गाया करती थी, हैं? जी। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। आज तुम भी गाओ ना। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई भी है दिलों को नजर नहीं चुराना सनम, बदलती मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। अरे क्या हो गया? अरे क्या हो गया भैया तुम्हारे इसमें? बिजली चली गई। अरे फिर चली गई लाइट। आ जाएगी चिकू? नहीं आएगी, मुझे मालूम है। कितना समय लगेगा तुम्हारे उसमें? अब जनरेटर चालू करने में 20 मिनट लगेंगे भैया। नहीं लगी है, आज तो ही गई है। बताए कैसा लेके आना, बताओ जल्दी करना भाई। सब बच्चे घूम मत। अभी कोई भी बच्चा रोएगा नहीं, सब चुप चुप। यहाँ पे सब उधर के बच्चे भी रो मत। ध्यान से मेरी बात सुनो। सब के सब ऊपर आसमान की तरफ देखो और बताओ क्या दिखता है? वेरी गुड। बताओ कि तारों से बना
हल दिखता है। हल दिखता है। देखो मैं दिखाता। वो वाला तारा, आसमान में सबसे उजला तारा दिखता है। उसी के बाजू दाएं में एक ही रेखा में 3 और तारे हैं। दिखाई दिए? दिखाती। अब इसी के नीचे इधर दाईं तरफ 5 तारे और निकलते हैं। नजर आए? अब इन सब तारों को एक साथ देखने की कोशिश करो। ध्यान से देखो तो तुम्हें हल बनता नजर आएगा। ध्यान से। तो समझने की बात यह है कि अगर हम इन तारों को मिलाकर देखें तो कुछ भी बनता है। हम कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर अलग अलग देखें तो सुंदर है, पर सिर्फ टिमटिमाते तारे हैं। ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा। ये तारा वो तारा हर तारा, ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा। ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा। जगमग तारे दो तारे नौ तारे 100 तारे, जगमग सारे हर तारा है शरारा। देखी है रनक तो बोलो रंग कितने हैं, 7 रंग कहने को फिर भी संग कितने हैं। समझो सबसे पहले तो रंग होते अकेले तो इंद्रधनुष बनता ही नहीं। एक न हम हो पाए तो अन्याय से लड़ने को होगी कोई जनता ही नहीं। फिर न कहना निर्बल है क्यों हारा। तारा तारा ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा। ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा। जगमग तारे 2 तारे 9 तारे 100 तारे, जगमग सारे हर तारा है शरारा।
बूंद मिलने से बनता एक दरिया है, बूंद बूंद सागर है, वरना ये सागर क्या है। समझो इस पहेली का, बूंद हो अकेली तो एक बूंद जैसे कुछ भी नहीं। हम औरों को छोड़े तो सबसे ही मोड़े तो तन्हा रह न जाए। देखो हम कहीं क्यों ना बने मिलके हम धारा। तारा तारा ये तारा वो तारा तारा, ये तारा वो तारा तारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा। ये तारा वो तारा तारा, ये सब रात में जो है रात में, तो जगमगाए आसमान सारा। जगमग तारे दो तारे लो तारे सौ तारे, जगमग सारे हर तारा है शरारा। हे हे जो किसान हल संभाले धरती सोना ही उगाए, जो ग्वाला गैया पाले दूध की नदी बहाए। जो लोहार लोहा ढाले हर औजार डल जाए, मिट्टी जो कुम्हार उठा ले मिट्टी प्याला बन जाए। सब ये रूप है मेहनत के, कुछ करने की चाह के, किसी का किसी से कोई बैर नहीं। सबके एक ही सपने हैं, सोचो तो सब अपने हैं, कोई भी किसी से यहाँ गैर नहीं। सीधी बात है समझो यारा। तारा तारा साथ में जो है रात में, तो जगमग गया आसमान सारा। जगमग तारे दो तारे लो तारे सौ तारे, जगमग सारे हर तारा है शरारा। ये तारा तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा। गीता, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है और अब मैं दबा के नहीं रख सकती। बोलो। मैं तुम्हें दिल्ली के बुक स्टोर में ही पहचान गई थी और ये भी समझ गई थी कि तुम कावेरी अम्मा को लेने आए हो। चरणपुर आने में गलती तुमने नहीं की, मैंने जानबूझकर तुम्हें गलत पता बताया था। अच्छा, क्यों? तुम उसे मेरा बचपना समझो, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ आओ और कावेरी अम्मा से मिलो। तुमने स्कूल के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए आई लाइक टू थैंक यू, लेकिन तुम कावेरी अम्मा को यहाँ से नहीं ले जा सकते। क्यों? तुम चाहते हो कि वो तुम्हारा घर संभाले और घर के सारे काम करे। क्या बकवास कर रही हो? तुम ऐसा कह भी कैसे सकती हो? मैं यहाँ 12,000 मील दूर सिर्फ कावेरी अम्मा के लिए आया हूँ। उनके भले के तुम्हें अब सूझी है? जब वो वृद्धाश्रम में थी तब कहाँ थे तुम? वो मैं थी जो उन्हें यहाँ लेकर आई। शायद इसलिए
कि तुम्हें किसी की जरूरत थी जो चीकू के साथ साथ तुम्हारे घर की देखभाल करे। आखिर तुम यहाँ आए ही क्यों? तुम वापस आए ही क्यों? हम कितने खुश थे यहाँ पर, और तुम्हारे पास तो सब कुछ है ना। हमारे पास सिर्फ कावेरी अम्मा है। सिर्फ तुम्हारा हक नहीं बनता उन पर। मैं मानती हूं कि तुम उनके लिए बेटे की तरह हो और वो तुम्हारे लिए मां समान, लेकिन मेरी भी मां है वो, और मुझे फिर से अनाथ नहीं होना।